Good morning, friends. This is the third and final part of the chapter metals and nonmetals. In this video, we are going to discuss about the displacement reaction, the reaction and reactivity या activity series, reaction between metals and non-metals, या you can say formation of ionic compound and properties of ionic compounds. Okay, so let us start the reaction of metal with solution of other metals, या you can say displacement reaction. Okay, so a displacement reaction is the reaction in which more reactive metals which can displace less reactive metal from their compound या salt solution या in its molten form of that compound. Okay, thus if a metal A is more reactive than metal B, then metal A displaces metal B from its salt solution in its solution form या in its मोल्टेन फॉर्म, पिघले हुए फॉर्म में हो या सोल्यूशन के फॉर्म में हो, दोनों के केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो फॉर एग्जांपल अ जनरल रिएक्शन लाइक दिस, मेटल ए विच इज अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces B from its salt solution, metal B, okay, which is less reactive than metal A. So salt of A is formed and metal B will be displaced from that solution. Okay, solution of B. For example, ये हम लोग देखे हैं फर्स्ट रिएक्शन में ही देखे थे, फर्स्ट चैप्टर के रिएक्शन में भी. सो एक एग्जांपल देखिए, आयरन डिस्प्लेसेस कापर मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट कापर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर. कापर सल्फेट एक ब्लू कलर का साल्ट होता है. ओके, एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कापर. Okay, blue solution turn green due to the formation of iron sulfate या ferrous sulfate. एक्चुअली ब्लू कलर सोल्यूशन में, जैसे कापर की ब्लू कलर सोल्यूशन में आप आयरन नेल्स डाल देंगे, आधे घंटे एक घंटे के बाद देखेंगे तो वो ब्लू कलर जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट इज ग्रीन कलर्स कंपाउंड ऑफ iron, and copper get deposit, it is brown in color. So as because iron is more reactive than copper and hence iron displaces copper from its salt solution copper sulfate and then कॉपर के जगह पर आयरन आ जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस होकर के अलग हो जाएगा. ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है? अब देखिए हियर, इफ कॉपर प्लेट इज ड्रॉप इन अ जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर प्लेट को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाल दें, देयर विल बी नो रिएक्शन. नो रिएक्शन इज फाउंड टू अकर एज कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. दैट इज वाई कॉपर मेटल इज नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन. So this reaction is not possible. Okay, no possible because copper is less reactive than zinc. Zinc से copper less reactive है. That is why copper is not going to displace. Okay, so on the, अब देखिए अब तक जितने रिएक्शन हुए हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड या रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटलिक साल्ट्स या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव रिएक्शंस विथ मेटल्स, it is found that some metals are highly reactive, some are moderate reactive, and some are even least या almost unreactive. Okay, so on this basis scientists have been arranged the metal in its decreasing order of reactivity, and this is known as reactivity series या activity series. Okay, so reactivity series या activity series, it is what? It is a list of metal arranged in order of their decreasing reactivity. So in activity series, metals reside at the top of the series are highly reactive. So potassium is more reactive than sodium and sodium is more reactive than copper.
magnesium, copper, calcium. Calcium is more reactive than magnesium. Magnesium is more reactive than aluminum. Similarly, aluminum is more reactive than zinc, and zinc is more reactive than iron, and iron is more reactive than lead. Similarly, lead is more reactive than hydrogen. Okay, so these metals are highly reactive. Okay, these metals are moderate reactive, and metals below the hydrogens are लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, लाइक कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम, दीज मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव. दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, वाटर. ओके, एंड दैट इज वाई दे आर फाउंड इन नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट. ओके, तो दिस इज द एक्टिविटी सीरीज. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा होगा कि कैल्शियम कैन डिस्प्लेस द मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. मैग्नीशियम सल्फेट में से कैल्शियम डिस्प्लेस कर सकता है, बट कापर नहीं कर सकता है, या कैल्शियम से नीचे वाला नहीं कर सकता है. ओके, नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल. एक्चुअली मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. ओके, अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, metal donate electrons to the non-metals. By donating electron, metal acquire a positive charge, and accepting these electrons donated by metals, non-metals acquire negative charge. Okay, such compound is known as electrovalent compounds. ऐसे रिएक्शन में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं. ठीक है, अब देखिए कैसे. अब metal form cations by losing electron, whereas non-metal form anions by accepting electrons. Okay, by losing electrons, metals complete their octet, and by gaining electrons, non-metals also complete their octet या doublet, and they found a stable electronic configuration state. Okay, so अब देखिए, for example, formation of ionic compound like sodium chloride. Sodium chloride में कैसे बनता है? Here sodium ion react with chlorine ion, and actually sodium donate one electron. देखिए electronic configuration of sodium have 11 proton in their nucleus. That is why their एटमिक नंबर इज 11. सो अगर हम 11 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड करें तो के सेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एम सेल हैव 1 इलेक्ट्रॉन. सो इट इज़ ईजी फॉर सोडियम एटम टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके एल सेल में ऑक्टेट अपना पूरा कर सकता है. सिमिलरली अब देखिए, क्लोरीन हैव 17 electrons, yeah, you can say atomic number is 17. So electronic configuration of chlorine is 2, 8 and 7. 2 electron in K cell, 8 electron in L cell, and 7 electron in K cell. So it is easier for chlorine atom to accept electron given by sodium. Okay, and form it acquire a negative charge, and by forming chloride ion they fill their M cell with 8 electrons. Okay, so here in this case, अब यहाँ पर आप देखिए कि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे. सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर N और एक डॉट लगाएंगे, Na1 डॉट, बिकॉज इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वी हैव टू राइट ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हम दिखाएंगे. यहाँ पर सोडियम एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका एक है एम सेल में. सिमिलरली क्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है जो एम सेल में है. तो हमको केवल
इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम इज 7। तो यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन क्रॉस के आधार पर। सो दिस सोडियम atom lose one electron and give it to the chlorine atom, then chlorine accept this electron and acquire negative charge, and sodium give electron and acquire a positive charge. That is why they form sodium chloride, okay, compound sodium chloride. Similarly अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, तो आप ज़्यादा समझ में आएगा आपको। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl2 होता है। हियर calcium atomic number of calcium is 20, so electronic configuration of calcium is 2 8 8 and 2। K cell में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल it is 8 and N सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, so this is the electronic configuration of calcium atom. But in case of chlorine, we have already talked about the chlorine atom. It has 2 8 and 7. Outermost cell have 7 electron, and here outermost cell in calcium it is 2. So it is easy for calcium to donate these 2 electron to 2 कैल्शियम 2 क्लोरीन एटम। ये दोनों क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इसका ऑक्टेट हो जाएगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन देने के बाद 2 8 and 8, ऑक्टेट इज कंप्लीट इन M सेल ऑफ कैल्शियम। एंड नाउ एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ओके, बाय कैल्शियम एटम, क्लोरीन कंप्लीट देयर ऑक्टेट 8 इन M सेल। सो कैल्शियम एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज and chloride ion acquire 1 negative charge, 2 chloride ion, okay. So by donating electrons by the calcium atom, which 2 electrons are accepted by 2 chlorine atom, they form chloride ion. So this is the calcium chloride. By forming calcium chloride, they complete their octet and become stable entities, okay, ये stable entity बन जाता है। So अब देखिए आप, now calcium loses 2 electron which are accepted by 2 chlorine atom, okay। इसी तरह आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। मैग्नीशियम, ओके, इसमें हो जाता है 12, तो इसका होगा 2 8 2, ओके। K सेल, L सेल एंड M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम में 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और ये मान लीजिए ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऑक्साइड का हो जाता है 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 and 6। तो फॉर ऑक्सीजन इट इज ईजियर टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, और मान लीजिए इसका हम 6 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं बाहर, 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बनाएगा क्या, अब यहाँ पर बनाएगा, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ये इट डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई दे फॉर्म 2 कैटायन, एंड ऑक्साइड आयन में इसका ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, और इसमें आप देखेंगे 2 नेगेटिव चार्ज, ओके। दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ओके। सो दिस इज द आयनिक कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर मीन्स इट इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट या लिक्विड या गैसेज स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, जो नमक है आप हम खाते हैं, उसको आप देखें, सो दे आर सॉलिड एंड हार्ड। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड। ये सॉलिड एंड हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। इनके बीच में पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं। एक्चुअली हम लिखते नहीं हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए सोडियम
and chloride. This is the common salt. तो सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन. इसमें नंबर ऑफ these ions are varies. It is infinite number of sodium ion and chloride ion. 50% of sodium and 50% of chloride ion. दोनों 50-50% होंगे इसका रेशियो. ठीक है. सो दे आर फॉर्म्ड बिटवीन अट्रैक्शन ऑफ सोडियम आयन एंड सोडियम कैटायन आयन एंड क्लोराइड एनायन. तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये हार्ड हो जाते हैं. ओके. सो if we try to break them, they break into pieces. That is why they are brittle in nature. Brittle, क्षणभंगुर, ये टूट टूट करके चूर हो जाते हैं. कभी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को तोड़िए आप तो वो टूट करके पाउडर बन जाएंगे. नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 174 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट. इट मीन्स सॉलिड सोडियम मेल्ट इनटू लिक्विड सोडियम क्लोराइड. सॉलिड सोडियम क्लोराइड मेल्ट इनटू लिक्विड सोडियम क्लोराइड एट 1074 केल्विन. इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है. एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट. इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. दिस इज बिकॉज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन between oppositively charged particles, that is cations and anions. कैटायन और एनायन के बीच का जो फोर्स है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए. दैट इज़ वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट देखिए, सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी मीन्स किसमें डिजॉल्व होता है. तो दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर. दे आर एक्चुअली पोलर कंपाउंड्स एंड दे डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. ये वाटर में या पोलर सॉल्वेंट में बहुत आसानी से डिजॉल्व होगा. बट दे आर इनसॉल्युबल इन केरोसिन, डीजल, पेट्रोल या ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. आप नमक को मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में डालिए वो डिजॉल्व नहीं होगा. ओके. इट इज इजली सॉल्युबल इन वाटर. ओके. नेक्स्ट देखिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कंडक्शन, आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल. ओके. ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर. सॉलिड स्टेट में आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुगेदर. दैट इज वाई आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. दैट इज वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट इन सॉल्यूशन केस व्हेन वी डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड इन वाटर, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए आप H2O में, तो ये सोडियम कैटायन एक्वस और क्लोराइड एनायन एक्वस बना लेगा. एंड दीज आयंस आर रेडी टू फ्री मूव एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रोड अपोजिट चार्जेस. दैट इज वाई इन सॉल्यूशन फॉर्म as well as in molten form they can conduct electricity. Okay. So in solution form of ionic compound they conduct electricity as ions, positive ions या negative ions free to move at opposite electrode. That is why they conduct electricity when electricity pass through that solution. Okay. Next देखिए, ionic compounds also conduct electricity in molten form. molten form means पिघला दें. अगर सोडियम क्लोराइड मान लीजिए NaCl सॉलिड फॉर्म में है और इसको गर्म कर दें हीट, तो ये हो जाएगा NaCl लिक्विड. ये लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बिकॉज इन लिक्विड फॉर्म देयर आयंस आर फ्री टू मूव, रेडी टू फ्री टू मूव. दैट इज वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट इन सॉलिड फॉर्म देयर आयंस आर नॉट फ्री, hence they do not move in a crystal. So they conduct electricity in molten form because ions are free to move. This is the whole about. Okay.